ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ شرکی میں غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم حمید اللہ کو 7 سال قید کی سزا سنا دی، ملزم پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی بالکل، دیکھیں، غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے کا مقدمہ ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں ملزم حمید اللہ پر جرم ثابت ہو گیا۔ عدالت نے ملزم کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی عدالت نے ملزم پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق یہ ملزم ایک مقدمے میں پہلے ہی گرفتار تھا۔ جب اس سے تفتیش کی گئی تو تفتیش کے دوران اس نے ایک جگہ کی نشاندہی کی جہاں پر پولیس پارٹی نے چھاپا مار کر یہ غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا، اور پھر اس ملزم کے خلاف سندھ آرمز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ایک الگ مقدمہ درج کیا گیا اور اس مقدمے کا ٹرائل عدالت میں چلایا گیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم کے خلاف 2 سے زائد گواہان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیے، جنہوں نے ملزم کے خلاف اپنا بیان قلم بند کروایا، جس پر عدالت نے مارکس دے کہ استغاثہ اس ملزم پر اپنا جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ ملزم کے خلاف یہ مقدمہ تھانہ سعود آباد میں درج کیا گیا تھا۔ جی، سندھ حکومت کی جانب سے انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر سکندر شورو کہتے ہیں صوبے میں پولیو کے بڑھتے کیسز تشویشناک ہیں۔ مزید جانیں گے عاجز جمالی سے، بتائیے گا۔ سندھ میں 9 فروری تک انسداد پولیو مہم جو ہے وہ جاری ہے، لیکن یہاں سندھ اسمبلی میں ایک رکن نے یہ تحریک بھی پیش کی ہے کہ صوبے میں بڑھتے ہوئے پولیو کیسز کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سندھ اسمبلی کے اہم رکن پارلیمانی سیکریٹری جو ہے ڈاکٹر سکندر شورو صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پولیو کے ایشو کو جانتے بھی ہیں، سندھ حکومت مہم بھی چلا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پولیو کے حوالے سے ہمیشہ گورنمنٹ کی جو ہے پرائرٹی رہی ہے، اور آپ کو خود پتہ ہے کہ پولیو کے حوالے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو اپنے بچوں کو پہلے جو پولیو کے ڈراپس پلائے تھے، اور اس کے بعد یہ مہم اسٹارٹ ہوئی تھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ جو فگرز ہمارے پاس ہیں وہ کوئی اطمینان بخش نہیں ہے۔ پولیو کے کیسز بہت سارے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور جو سیمپلنگ ہو رہی ہے اس میں بھی پولیو کے کیسز، پولیو کے سیمپل پازیٹیو آ رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی سندھ گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی ہے، اور جب بھی پولیو کی کوئی بھی کیمپین اسٹارٹ ہوتی ہے تو سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ بیوروکریسی ہو، اور چاہے وہ اپنا ایم پی ایم این ایز ہو، سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر یونین کاؤنسل وائز اس کی ایک پولیو کی ایریڈیکیشن کے لیے وہ ویکسینیشن کی جاتی ہے، پولیو کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں۔ تو اس بار بھی جو بھی ہمارے جذبے جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے، جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جس میں جو ریفیوزل کے کیسز ہوتے ہیں یا جہاں تک پہنچنا، اگر کہیں پہ بھی کہیں کوئی رکاوٹ ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بھی اپنے ڈسٹرکٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ان سے تعاون میں رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک بچہ بھی پولیو کے قطرے پلائے بغیر نہ رہے۔ تو سندھ گورنمنٹ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور پہلے سے زیادہ کام کر رہی ہے، اور میں جو لیڈی ہیلتھ ورکر اور جو ہیلتھ پروفیشنل کے جو دوسرے ڈاکٹرز اور دوسرے جو بھی اس پولیو مہم میں جو کہ دن رات کام کر رہے ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کروں گا۔ ہیلتھ منسٹری کو بھی اپریشیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس پولیو جیسی مہلک بیماری سے اس پورے پاکستان انشاءاللہ بہت جلد پولیو فری ہوگا۔ تھینک یو۔ سنا آپ نے سندھ اسمبلی کے رکن پارلیمنٹ سیکریٹری ڈاکٹر سکندر شورو کو کہ سندھ حکومت پولیو کے انسداد پولیو مہم چلا رہی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پولیو کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ تشویشناک ہے، لیکن بہرحال حکومت اپنے طور پہ پولیو کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ جی، اور ایم کیو ایم پاکستان صحافیوں کے حق میں بول پڑی۔ رکن قومی اسمبلی سید امین الحق کہتے ہیں کہ کراچی پریس کلب میں پیکا آرڈیننس سے متعلق آج بات ہوئی ہے۔ سابق دور حکومت میں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بھی مخالفت کی تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت انہی کے ساتھ موجود ہے، تفصیلات جان لیں گے شعیب سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پاکستان نے گزشتہ دنوں پیکا ایکٹ ترمیمی بل جو ہے منظور کیا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی سید امین الحق۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے، یہ بتائیے گا اس بل کی تو صحافی برادری مخالفت کر رہی ہے، آج آپ کراچی پریس کلب آئے ہیں، آپ کی یہاں کے صدر، جنرل سیکریٹری اور اراکین گورننگ باڈی سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس بل کے حوالے سے؟ دیکھیے، کراچی پریس کلب کا دورہ آف اینڈ آن میرا ہوتا رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو
जो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से है बात हुई है, मैंने सहाफ़ी भाइयों के सामने रखा है कि जब 90 की दहाई हो या 2000 की दहाई हो, जब वेज बोर्ड अवार्ड का मसला था तो एमके अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी रही है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोशिश की गई खान साहब की हुकूमत में, एमकेएम ने उसकी भी मुखालफत की और अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी रही है। अब जो मसला आया है मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिकी भी है कि जो फेक न्यूज़ है एमकेएम उसकी मुखालफत करती है, समझते हैं कि फेक न्यूज़ से मुमलिकत को भी, अवाम को भी, सियासी पार्टी को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचता है। तो हमें बैठ करके फेक न्यूज़ की एक डिफिनेशन बनानी होगी। हाँ, साथ साथ एमकेएम ये समझती है कि किसी भी कानून साजी करने में जो स्टेक होल्डर उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, जैसे कि PFUJ है, PB है, CPN है, APN है, सब प्रेस क्लब है, इनको ऑन बोर्ड लिया जाए, इनकी बात सुनी जाए और फिर कानून के नफाज की तरफ जाना चाहिए। अच्छा अमीन भाई, ये बताइएगा, पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सहाफ़ी बिरादरी जो है एहतजाज की तैयारियां भी कर रही हैं कि अगर जो है ये बिल वापस नहीं लिया गया तो इस पर एहतजाज होगा, तो क्या एमकेएम भी इस एहतजाज की हिमायत करेगी अगर आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी सूरत हाल हुई? मैं समझता हूँ कि अगर सहाफ़ी बिरादरी, प्रेस क्लब के नुमाइंदे और जो सहाफ़ती तंजीमें अगर कोई अपना प्रोटेस्ट का जिसे कहते हैं लॉन्च करती है तो डेफिनेटली एमकेएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी में बैठेगी, मशावरत करेगी, फिर कोई फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एमकेएम पाकिस्तान ने जो है हमेशा से आज़ादी सहाफ़त का जो है वो साथ दिया है। एमकेएम जो है आज़ादी सहाफ़त पर जो है यकीन रखती है। इनका ये कहना है कि सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़े हैं। जी 26 अरब टैक्स वसूली का हदफ हासिल। 26.6 अरब एफबीआर के रीजनल टैक्स ऑफिस का ये बड़ा कारनामा है। RTO 1 ने माहाना टैक्स का 110% हदफ अबूर कर लिया। 26 अरब टैक्स वसूली का हदफ हासिल किए गए हैं 28.6 अरब। एफबीआर के रीजनल टैक्स ऑफिस 1 का बड़ा कारनामा। RTO 1 ने माहाना टैक्स का 110% हदफ अबूर कर लिया। रज़ाकाराना टैक्स अदायगी में नुमाया इजाफा हुआ। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने 110% माहाना टैक्स हदफ अबूर कर लिया है। रज़ाकाराना टैक्स अदायगी में नुमाया इजाफा देखने में आया है। RTO 1 को जनवरी के महीने में टैक्स वसूली के लिए टैक्स वसूली के जरिए से 26 अरब रुपये जमा करने का हदफ दिया गया था, जबकि रीजनल ऑफिस ने 28.6 अरब रुपए की टैक्स वसूली की है, जो कि दिए गए 100% माहाना हदफ से 10% ज़्यादा है। किसी दूसरे रीजनल ऑफिस से माहाना हदफ से ज़्यादा टैक्स वसूल किया गया है। इसी के साथ साथ रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने डोमेस्टिक टैक्स वसूली का हिस्सा बढ़ाने और टैक्स कवानीन की निफाज के लिए बेहतरीन हिकमत अमली तरतीब दी है। इस ज़मीन में दिसंबर और जनवरी के महीने के दौरान 1 अरब रुपये से भी ज़्यादा टैक्स वसूल किया गया, जो इससे कबल 300 या 400 मिलियन रुपए तक वसूल होता था। इस हिकमत अमली को जारी रखते हुए फरवरी और मार्च के दौरान 3 से 4 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का हदफ रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई मुहतसिब सिंध सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सिलेंडर्स की आज़ादाना नकलो हरकत गैर कानूनी फ़रोख्त से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सूबाई मुहतसिब, कमिश्नर कराची समेत दीगर शरीक हुए। कमिश्नर कराची ने सूबाई मुहतसिब को LPG की गैर कानूनी और गैर मियारी फ़रोख्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। जी हाँ, सूबाई मुहतसिब सिंध सुहेल राजपूत के ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। सिलेंडर्स की आज़ादाना नकलो हरकत गैर कानूनी फ़रोख्त से मुतालिक जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी सूबाई मुहतसिब, कमिश्नर कराची समेत दीगर शरीक हुए। कमिश्नर कराची ने सूबाई मुहतसिब को LPG को गैर कानूनी और गैर मयारी फ़रोख्त से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। आपको बताएं कि सूबाई मुहतसिब सिंध सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। सिलेंडर्स की आज़ादाना नकलो हरकत गैर कानूनी फ़रोख्त से मुतालिक जायज़ा इजलास लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी सूबाई मुहतसिब, कमिश्नर कराची समेत दीगर शरीक हुए हैं। कमिश्नर कराची ने सूबाई मुहतसिब को LPG की गैर कानूनी और गैर मयारी फ़रोख्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर कराची ने कहा कि उगरा को कवानीन में तरमीम करना होंगे। बात करने के लिए खुर्शीद रहमानी हमारे साथ है, अपडेट कीजिएगा। जी, इसमें को मतलब अशकिया ज़िले की चमटों पर ज़ाब्ते से मुतल्लिक़ वज़ीर सिंध के मुशीर अकार मेदी के साथ में इजलास हुआ है। इस इजलास में मामले खुसूसी ब्यूरो ऑफ सफाई खानगोर ने शिरकत की है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत सोहेल कुरैशी और DG ब्यूरो ऑफ सफाई की अशकिया ज़िले की कैंटों को कंट्रोल करने से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत सिंध की जानिब से नाफिज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का असर आटे की कीमतों पर पड़ने लगा है।
आपको बताएं कि इनकम टैक्स का असर आटे की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने यह वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन सिंध जोन अब्दुल जुनैद अजीज़ के मुताबिक कीमतें तलब और रसद में फ़र्क की वजह से बढ़ती हैं। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़राअत के शोबे से ख़बर यह है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो ज़राअत पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो नाफिज किया है और ये टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो जमा करेगा। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, बिलखुसूस अगर हम आटे के हवाले से बात करें तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल जुनैद अजीज़ जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध जोन के। इनसे जानते हैं क्या आटे की कीमतें बढ़ जाएंगी, अगर बढ़ेंगी तो कितने फ़ीसद बढ़ेंगी? देखें, ये टैक्स जो है ना ये इनकम पे है, तो जिसने इनकम करनी है वो इसको टैक्स देगा। इससे एज सच आटे की कीमतों पे कोई फौरी तौर से फ़र्क नहीं आएगा। आटे की कीमतें जो है ना वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं। वीट अगर इसी तरह जिस तरह इस साल अवेलेबल रही और आटा आपको सस्ता मिलता रहा, सब जगह मिलता रहा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, इसी तरह अगर मिलती रहेगी तो फिर आटे की कीमतों पे असर नहीं आएगा। सिर्फ इसमें एक ये चीज़ है कि मिनिमम एग्जम्पशन जो स्लैब है वो 6 लाख इनके लिए भी और 6 लाख दूसरों के लिए भी मैं कहता हूँ कि वो बहुत कम है। आजकल की कॉस्टिंग के हिसाब से जो है ना 6 लाख एग्जम्पशन की बजाय जैसे पहले 12 लाख था, वो मिनिमम एग्जम्पशन होना चाहिए ताकि लोग सुकून से जो है अपना राशन पानी चला सकें। अगर गवर्नमेंट देखें एक्टिव रोल लेती है, सप्लाई प्रॉपर रहती है, जहाँ से उसको हर्डल हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, उसको अगर प्रॉपर हल कर लिया जाए और सप्लाई इजीली होती रहे, जब डिमांड हो और यहाँ शॉर्टेज हो तो मजबूरन हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। कड़वा घोंट पीना पड़ता है, तो जो कड़वी गोलियां हम सारी ज़िंदगी पीते आए इस मुल्क में, तो एक आध कड़वा घोंट पी के उस वक्त उस हालात के हिसाब से उसको सेटल करना चाहिए और ये फौरी फैसलों की ज़रूरत होती है। इसमें हम कमेटियाँ और लंबे प्रोसेस में जाने के बाद जब फैसले करते हैं तो वक्त गुजर चुका होता है और उस फैसले का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है फिर। जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल जुनैद अजीज़ जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस टैक्स का असर जो है वो आटे की कीमतों पर नहीं पड़ेगा और आटे की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो वो उस सूरत में बढ़ेंगी कि डिमांड और सप्लाई में फ़र्क अगर पड़ता है। ताहम इनका ये कहना है कि इस टैक्स का असर जो है वो आटे की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। ताहम इनका ये कहना है कि जो टैक्स स्लैब रखा गया है वो 6 लाख रुपये का, उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक जो है वो करना चाहिए, जो कि माजी में भी देखने में आया है। ताहम इस टैक्स का असर जो है वो कीमतों पर असरअंदाज नहीं होगा और रमज़ान में भी आटे की कीमतें जो है वो स्टेबल रहेंगी। जी, होलसेल मार्केट में चीनी का भाव फिर बढ़ गया। फी किलो चीनी 143 से बढ़कर 147 रुपए तक जा पहुंची। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत सट्टेबाजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, जिसकी वजह से चीनी महंगी हो रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, सट्टा माफिया का राज, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। होलसेल में कीमत 4 रुपए इजाफे से 147 रुपए किलो हो गई। ताजिर जुहेब कहते हैं कि रिटेल में कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई है। हुकूमत सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन करे। 141, 138 रुपए ऐसे ही थी, अब चीनी आज 147 रुपए। बाकी बात यह है कि ये सारा हुकूमत का काम है। ये सारी मिलें जो है ना, जितनी भी ये सारी हुक्मरानों की है, उनके तो कानों पे जूं भी नहीं रेंगेगी। वो बोलेंगे बस बढ़ रहा है, अपना फ़ायदा है, खैर है, कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट इतना बढ़ा हुआ है, हर चीज़ इतनी बढ़ी हुई है, कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल है ही नहीं आगा। शहरी बोले रमजान मुबारक की आमद है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मैं हुकूमत से यही कहूँगा, 147 होलसेल पे मिल रही है चीनी और रिटेल में 160 रुपये बिक रही है, तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। दूसरी जानिब कराची होलसेल ग्रोसर्स ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मेहरान टाउन में सड़कों की अबतर हालत दुरुस्त ना की जा सकी। सीवरेज के बदतरीन निज़ाम के बायस सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। आगाह करेंगी अक्सा शेख। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके मेहरान टाउन में और आप मेरे अक़ब में सड़क का हाल देख सकते हैं कि ये सड़क कितनी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, टूट फूट का शिकार है। सीवरेज के निज़ाम ने इसको तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ पर जो है इस पानी की वजह से गड्ढे पड़ चुके हैं। यहाँ लोग अपने कारोबार के उसूल के लिए भी आते हैं, लोगों की मार्केट्स बनी हुई है, रिहायशी इलाका भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बल्दियाती नुमाइंदे गायब हैं। यहाँ पे एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है जो इस दुकान पर भी होते हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ कारोबार के अलावा ये कुरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6E का एरिया है, ए का, ठीक है। 50 फुट का ये रोड है। यहाँ की सीवरेज का निज़ाम कोई धर्म भरम है, टूटा फूटा है।
यहाँ खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ सब काउंसलर वगैरह सब आते हैं, इलेक्शनों के टाइम पे भी, चंदा के टाइम पे भी सब कुछ होता है। यहाँ करोड़ों रुपए का प्रॉफिट लिया जाता है क्योंकि टैक्स लिया जाता है, किसी का तरीके से कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ हर इंसान परेशान है, स्कूल में बच्चे आने जाने वाले, कारोबार पे आने जाने वाले लोग, मालकान लोग, अब जैसे दुकान वाले हैं कारोबार करने के लिए, यहाँ बैठे में गंदगी है, कुछ भी है, लेकिन इस पर कोई भी आता है एक्शन नहीं लेता है, सिर्फ मालूमात लेके चले जाते हैं, यहाँ से तस्वीरें बनाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप लोग इतनी परेशानी का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है तो आप लोगों ने कोई दरख्वास्त वगैरह दर्ज करवाई है? एसी के पास दरख्वास्त दी गई है, काउंसलर के पास दरख्वास्त दी गई है, एसी आया है 10-15 दिन पहले, जो नया एसी चेंज हुआ है वो यहाँ के मालूमात लेके गया है और यहाँ से वीडियो बना के लेंगे, लेकिन कोई भी मालूमात लेके जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक शहरी भी हैं, ये दुकानदार भी हैं, हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हमने मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत हमारे कैमरामैन इमरान है कि दिखा सकें कि यहाँ पर लोगों ने रोड पे पत्थर रखे हुए हैं कि वो अपनी दुकान पे जा सके। उससे बड़ी जो बात है, यहाँ पे ये एक मेन हॉल है जिसका ढक्कन तक नहीं है, जो खुला हुआ है। यहाँ से ट्रैफिक भी गुजरता है, बच्चे भी गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये उनके हादसात की वजह भी बन सकता है। तो इन लोगों का यही मुतालबा है कि इस सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए, मेन हॉल को ढका जाए ताकि जो हादसात पेश आते हैं और इनको आने जाने में राहगीर को और जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है वो कम हो सके। जी।